ایسی شخصیت موجود ہے جو نہ صرف آپ نے ہمیشہ ان کو HTV پہ دیکھا ہے، بڑے ہی مزے سے یہ آپ کی بیماریوں کا سلوشن بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اشعار سے بھی ہمیں لطف اندوز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے یورولوجسٹ ڈاکٹر امتیاز علی. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں سر؟ بالکل فرسٹ کلاس. سر انٹروڈکشن کیسا لگا آپ کا؟ بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ. موسٹ ویلکم سر. یہ بتائیے کہ جب ہم کڈنی سے ریلیٹڈ بیماریوں کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے آئی تھنک ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ کڈنی بیسکلی کرتی کیا ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے اور بیسک سوال ہے. دیکھیں گردے جو ہیں یہ تقریباً بین شیپڈ آرگنز ہیں جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف واقع ہیں. ان کا ویٹ تقریباً 150 گرامز ہوتا ہے اور ان کا جو مین فنکشن ہے وہ فلوئڈ اور الیکٹرولائٹ بیلنس ہے. یعنی جو پانی ہم پیتے ہیں غذا کی صورت میں یا پانی کی صورت میں یا چائے یا شربت کی صورت میں، صحیح، اس کا جسم سے اخراج، اور وہ اخراج یہ آٹو ریگولیشن کے تحت کرتے ہیں، خود بخود یعنی وہ ریلیز خود بخود جتنا جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ پانی یہ روک لیتے ہیں اور ایکسٹرا پانی یہ اخراج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جسم میں جو میٹابولک ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں، یعنی جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، لیور جو ہے وہ غذا ایبزارب کر کے اس کو میٹابولائز کرتا ہے، اور اس دوران جو ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو فاضل مادے نکلتے ہیں، یوریا اور کریٹنین اور مختلف فاسفورس اور مختلف الیکٹرولائٹس جو جسم کے لیے غیر ضروری ہیں، ان کو یہ جسم سے اخراج کر دیتا ہے یورین کی صورت میں. اوکے. اور یہ آٹومیٹک پروسیس یہ تو آٹومیٹک ہے، سب کچھ کڈنیز کرتی ہیں اگر صحیح سے کام کر رہی ہوں. بالکل. اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کام نہ کریں تو آپ سمجھیں 3000 سے لے کر 5000 روپے پر ڈائلسس سیشن کا ایک خرچہ، اور وہ 2 ہفتے میں 2-3 دفعہ آپ کو کروانا پڑے گا. یعنی سمجھیے کہ یہ وہ فری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کو ہم شاید کبھی گنتے بھی نہیں ہیں، نہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو گردے 2 بہت امپورٹنٹ کام کرتے ہیں وہ بلڈ کی فارمیشن یا RBCs کی فارمیشن ہے. اسی وجہ سے ریڈ بلڈ سیلز کا جو فارمیشن ہے، اسی وجہ سے جن لوگوں کا گردے فیل ہو جاتے ہیں ان کا ہیموگلوبن بھی آپ کو کم ملتا ہے. چوتھا امپورٹنٹ فنکشن جو گردوں کا ہے وہ کیلشیم میٹابولزم ہے. یعنی کیلشیم کا جی بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ وائٹامن ڈی کی جو ایکٹیو فارم ہے یہ بناتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو لوگ جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں ان کی بونز ویک ہو جاتی ہیں اور کیلشیم کے لیولز اس میں عام طور پہ کم ملتے ہیں. عام طور پہ کم ہوتا ہے. یہاں پہ ہلکا سے تھوڑا سا یہاں پہ ایک بریک لیں گے. آمنہ آپ کی طرف آئیں گے. وائٹامن ڈی آپ ہمیشہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں، کہاں سے حاصل کریں وائٹامن ڈی؟ اچھا، وائٹامن ڈی جو ہے نا وہ آج کل آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب مجھ سے اگری کریں گے، بہت سے لوگ اب لاسٹ 5 ایئرز میں یہ ٹیسٹ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اور بہت سے لوگ ڈیفیشینٹ ہیں وٹامن ڈی میں. ٹھیک ہے. اور اب جا کے ڈاکٹرز فوکس کر رہے ہیں کہ جی جو ڈیفیشنسی ہے اس سے جو تھکاوٹ اور ایکسٹرا جو انرجی لاس یہ سارا وٹامن ڈی کی وجہ سے آتا ہے. اچھا، آئی ایم شیور میڈیکل ڈاکٹر آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. انجیکشنز بھی ہوتے ہیں ایوری منتھ فار 3 months، ڈراپس بھی ہوتے ہیں، ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں، بڑی نیچرل چیز ہوتی ہے آمنہ. اور ایک نیچرل سب سے زبردست چیز ہے کہ سورج، اگر آپ 10 منٹ روز سورج میں سیک لیں تو آپ کی وٹامن، اور یہ ہمیشہ آمنہ بتا رہی ہوتی ہیں. اور کیلشیم کی ابزارپشن بھی آپ ہمیشہ یہ بتاتی ہیں کہ بھائی کیلشیم آپ کی باڈی میں آسانی سے تب ابزارب ہوگا جب وائٹامن ڈی لیں گے. سر اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان ممالک سے، UK سے اور اس قسم کے تھوڑے سے یورپ کے ممالک سے کمپیئر کریں تو وہ تو بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دھوپ بالکل سنی ڈے کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ دن کے زیادہ تر حصے میں موجود ہوتا ہے. بالکل. وہ خواتین جو برقع یا پردہ آبزرونگ ہیں، یا جو اب کراچی میں یہ کلچر بہت زیادہ ہے فلیٹس میں رہنے والا، اب نیچرلی ان فلیٹس میں میرے خیال ہے ہوا کا گزر بھی مشکل سے ہوتا ہے، تو دھوپ کا جو گزر ہے وہ زیادہ مشکل ہے. لوگوں نے اے سی لگائے ہوئے ہیں اور سارا دن اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بیلکنی میں جا کے ویسے تھوڑا بیلکنی میں جب نرم دھوپ ہو تو بیٹھا جا سکتا ہے، مگر یہ آپشن ان کو بتائے کون؟ ہم ہیں بتانے کے لیے. جی. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے یہ ذکر کیا کہ جی دھوپ، نرم دھوپ جو صبح کے ٹائم پہ یا شام کے ٹائم پہ جو قابل برداشت ہو، اس میں اگر تھوڑا سا ایکسپوجر ہو اور 1 یا 1.5 گلاس دودھ اگر روزانہ پی لیا جائے تو نتھنگ لائک. ٹھیک ہے سر. دھوپ سے نکل کر تھوڑا چھاؤں کی طرف آتے اور ذرا دوبارہ آتے ہیں کڈنیز کی طرف. سر ابھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی، کڈنی کی بیماری ایک ورڈ ہے،
कौन कौन सी ऐसे कैटेगरीज हैं जो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सीवियरिटी से स्टार्ट करते हैं कि छोटी मोटी किडनी की बीमारी कौन सी हो सकती है? छोटी मोटी बीमारी जो लोग ज्यादातर गुर्दे की बीमारी कहते हैं, वो गुर्दे की नहीं होती, वो मसाने का या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी जिसको हम कहते हैं यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है हमारी ओपीडीज में। सबसे ज्यादा खवातीन इसका शिकार मिलती हैं। अच्छा, मर्दों से ज्यादा? मर्दों से तकरीबन 10 टाइम्स ज्यादा। देखिए खवातीन में मैं व्यूअर्स को शेयर करूंगा कि इनैटमिकली जो उनकी पेशाब की नाली है, जो ब्लैडर से बाहर निकल रही है, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, ठीक है, वो मर्दों के मुकाबले में शॉर्ट होती है। तकरीबन मर्दों में 20 सेंटीमीटर और खवातीन में 4 सेंटीमीटर, यानी काफी फर्क है। काफी फर्क है। तो लिहाजा इनके बैरियर्स भी कम होते हैं। ठीक है। तो लिहाजा बैक्टीरिया को या जरासीम को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है वो कम होता है। ठीक है। तो लिहाजा असेंडिंग इन्फेक्शंस दे आर 10 टाइम्स मोर कॉमन इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू द मेल्स। यानी खवातीन को ज्यादा सुनना चाहिए आज का शो कि जी क्यों यूटीआई होता है और क्या ऐसा करेंगे कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो। सही। तो जो ज्यादातर खवातीन मेरे पास आती हैं और अक्सर ओपीडीज में आती हैं, वो उसको गुर्दे का इन्फेक्शन कह रही होती हैं। आम तौर पे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये इन्फेक्शन मसाना और मसाने से नीचे ही रहता है। अगर गुर्दे तक ये इन्फेक्शन जाए, जो बहुत रेयरिटी होती है, तो वो बहुत सीवियर होता है और वो मरीज आमतौर पे ओपीडी में चल के आपके पास नहीं आता, वो स्ट्रेचर पे आएगा और उसका कोई ओपीडी के टाइमिंग पे नहीं आएगा, वो इमरजेंसी में कभी भी लैंड कर सकता है। यानी सर यूटीआई, अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास एक ब्रेक का टाइम है, अगर हम सिम्टम्स पे बात करेंगे कि यूटीआई के गुर्दे की वो वाली तकलीफ के, सीवियर वाली के नहीं, यूटीआई की क्या सिम्टम्स होती है? पानी, वो लोग जो कहते हैं कि जी हमें यूटीआई की तकलीफ है लेकिन पानी तो फिर भी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिया जाता, तो आमना हमारी बताएंगी कि पानी के अलावा आप किस किस फॉर्म में जो है वो कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, किडनी वीक मना रहे हैं, आज बता रहे हैं किडनी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी बीमारियां कवर करने की आज कोशिश करेंगे। जल्दी से वापस आ जाइए, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग। हेल्दी कुकिंग में आज हम आपको बता रहे हैं कि किडनी से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। नीचे से हमने स्टार्ट किया है थोड़ा कम सीवियर वाली बीमारियों से। सबसे कम सीवियर बीमारी किडनी से रिलेटेड यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि होता क्या है, किस तरह से होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन इसमें पानी किस तरह से पिए, वो तमाम नखरीले लोग जिनको पानी नहीं पीना, ये आमना बताएंगे हमारी। आमना क्या करें अगर यूटीआई और पानी नहीं? यूटीआई में तो बहुत पानी की जरूरत है। कोई भी फ्लूइड जितना ज्यादा, नींबू पानी हो, पैकेट के जूसेस हो, कोशिश करें कि ज्यादा पैकेट के जूसेस ना पिएं क्योंकि उसमें चीनी होती है, तो अगर आप वजन कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी कम से कम 8 से 10 गिलास बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बात जरूरी है कि अगर आपका किडनी फेलियर है तो फिर आपको पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट करना होता है। उसमें केला आप नहीं ले सकते। यानी ये आप यूटीआई की बात नहीं करें, किडनी के फेल होने की बात। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है और ये बात मैं ऐड करना चाहूंगा। जूसेस, पैकेट वाले जूसेस भी ले सकते हैं। पैकेट वाले जितने भी जूसेस हैं, दे आर हाई इन पोटेशियम। अच्छा, तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूटीआई में ले सकते हैं, आप बता रहे हैं किडनी फेलियर में नहीं। किडनी फेलियर तो टॉपिक ही अलग है और बहुत अच्छी बात की है कि अगर कोई यूटीआई के साथ रीनल फेलियर वाला पेशेंट है, जो इन्होंने जिक्र किया है, आई टोटली एग्री कि ये इनको लिमिट करना चाहिए। सर ये तो हमने बात की यूटीआई की, हम थोड़ा सा कम सीवियरिटी से स्टार्ट कर रहे थे। इससे ज्यादा सीवियर कोई स्टोन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? स्टोन एक बहुत कॉमन बीमारी है। हम स्टोन बेल्ट में वाक़ हैं और पाकिस्तान स्टोन बेल्ट में है, और स्टोन बेल्ट वो रीजन्स हैं जहां हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। इसमें स्टोन ज्यादा? जी ज्यादा। नेचुरली देखिए, जब स्वेट के साथ वाटर लॉस ज्यादा होगा और लोगों को जो साफ पानी की सहूलियात हैं वो जब कम मुयस्सर आएंगी तो नेचुरली उनका वाटर इनटेक कम हो जाएगा। आम तौर पे जो पानी, जो हमारा नलके का पानी है, मैं बड़े दुख के साथ ये बात करता हूँ कि इट इज अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो लिहाजा आप खुद सोच लीजिए कि जब साफ पानी तक हमारी रसाई भी नहीं होगी, और मुझे ऐसे बेतहाशा मरीज मिलते हैं, मैं इस चैनल की वसातत से लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, जो सुबह 1 गिलास पानी का पीकर निकलते हैं और दिन में 1-2 कप चाय और उसके बाद रात को आके पानी पीते हैं। और फिर वो ये बोलते हैं, सर जस्टिफिकेशन ये होती है कि हमें प्यास नहीं लगती, आपकी बॉडी को पानी की जरूरत है। अच्छा सर, ये क्लियर किएगा एक बात,
गंदे पानी से स्टोन्स होने का चांस है या कम पानी पीने से किडनी स्टोन्स? गंदे पानी से आपको हेपेटाइटिस ए या ई हो सकता है, हैजे से मर सकता है कोई, मगर आम तौर पे जो स्टोन डिजीज है वो मतलब अगर वो कॉन्स्टेंटली कोई गंदा पानी पी रहा है तो वो दूसरी बीमारियों से उससे पहले मर जाएगा बनिस्बत इसके कि उसको स्टोन डिजीज हो। ओके, अच्छा सर, ये जेनेटिक भी है? अगर आपकी फैमिली में स्टोन वाली बीमारी कोई रन करती है तो चांसेस हैं क्या? एग्जैक्टली स्टोन डिजीज जेनेटिक है ओके, और कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं और ये फैमिलीज में भी रन करती है, मगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर एडेड हो जाएं तो फिर ये चीज ज्यादा भागा हो जाता है फिर। अच्छा सर, तो स्टोन्स की कोई टाइप्स होती हैं कि स्टोन किस चीज से बना हुआ है, किस चीज का? जी बिल्कुल, तकरीबन 70% जो स्टोन्स हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा ट्रिपल एमोनियम फॉस्फेट, जेंथीन, सिस्टीन और यूरिक एसिड, ये 5-6 वेराइटीज हैं जो कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं ये तकरीबन 70% स्टोन डिजीज का बर्डन इन्हीं की वजह से होता है। ये इनमें छोटी छोटी स्पाइक्स या पॉइंटी स्टोन्स होते हैं। ये इसमें पेशाब में खून आ सकता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड में दर्द हो सकता है। सिम्टम्स बता रहे हैं, बहुत जरूरी है कि यूरिन में खून आना, लेफ्ट साइड राइट साइड में दर्द या लंबर पेन साइडों के ऊपर, पेशाब में खून आना, पेशाब जल के आना या पेशाब बिल्कुल बंद हो जाना, ये भी हो सकता है। तो लिहाजा ये कॉमन सिम्टम्स हैं। और फीवर सर्दी के साथ होना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो स्टोन डिजीज के पेशेंट्स को हो सकते हैं। सही। स्टोन डिजीज जो है ये फेयरली कॉमन है। तकरीबन 4 से 5% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको एटलीस्ट पिछली उसकी उम्र में एक दफा स्टोन का इंसिडेंट जरूर हुआ होगा। तो आप सोच लें कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है इसका 4 से 5% जो है किसी न किसी स्टेज में उनको एक, यानी ये सर इतना अनकॉमन नहीं है जितना दिखाई देता है। जैसे अभी आपने बताया है कि कभी ना कभी जो है वो उनको इस वाले चांस में जरूर हुआ होगा। अच्छा, आमना आपकी तरफ आते हैं कि किडनी स्टोन्स में यूजुअली जब हम कहते हैं कि जी किडनी स्टोन है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें जिससे आपने क्रॉस लगाना है कि ये तो आप खा ही नहीं सकते? एक तो ये फास्ट फूड डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट। सही है। स्पेशली जो आजकल प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाना है, मैं चाहे वो वेट लॉस की बात करें, चाहे आप किडनी स्टोन्स की बात करें, हमेशा मैं यही कहती हूँ और इसी पे जोर देती हूँ कि जितना ज्यादा इनको कम घर में लाया जाए, बिकॉज इनमें होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के प्रिजर्वेटिव जो कंटिन्यूअस उसको ज्यादा लेने से आपकी बॉडी में स्टोन्स भी हो सकते हैं और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। वजन ऑब्वियसली वजन तो बढ़ता ही है। ये कोई ये तो इसमें कोई वो ही नहीं है कि हम इन चीजों से वजन नहीं बढ़ता। 100% सबसे पहले तो वजन इनसे बढ़ता है। बिल्कुल। और उसके साथ जो बाकी बोनस में जो सारी बीमारियां होती हैं वो एक एडिशनल होती है। एक काली चाय को कम करें। अच्छा, लिमिट करते हैं। कैफीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए हमें, मतलब काली चाय जरा सा जो ब्लैक टी है उसको रिड्यूस रखें। अच्छा, मतलब अगर वो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सर ज्यादा चांसेस होते हैं स्टोन डेवलप होने के। इसी वजह से इन्होंने बहुत अच्छी बात की, जो ये जितने भी फास्ट फूड है दे आर हाई इन सॉल्ट ऑल्सो एंड सोडियम इज वन ऑफ द कल्प्रिट्स जो स्टोन डिजीज। यानी सोडियम आपके लिए उतना ही नुकसानदेह है। हम हमेशा बात कर रहे होते हैं जितनी चीनी है, भाई सोडियम को आप हल्का ना लें, सोडियम भी उसी लाइन में है जिस लाइन में चीनी है आपके लिए। अच्छा सर, स्टोन्स की हम बात कर रहे थे तो आपने अभी जो है वो बताया कि कैल्शियम वाला एक स्टोन, क्योंकि मेरे उस पर कान खड़े हो गए, तो क्या हम कैल्शियम ले ही नहीं? बिल्कुल ऐसी बात जो है मैं व्यूअर्स को कन्वे करना चाहूंगा। 1 से 2 ग्लास जो दूध है वो आप ले सकते हैं, इवन स्टोन पेशेंट। अच्छा, तब भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, बट दे शुड बी कपल्ड विद, जैसे अभी आमना ने जिक्र किया कि हाई फ्लूइड इनटेक। अगर वो हाई फ्लूइड इनटेक के साथ 1 से 2 ग्लासेस ऑफ कैल्शियम या दूध लिए जा रहे हैं तो दे आर वेरी बेनिफिशियल। इसके अलावा जैसे जिक्र किया आमना ने, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं फास्ट फूड वाली, बिकॉज दे आर नॉट ओनली रिच इन प्रिजर्वेटिव्स, दे आर रिच इन सोडियम। ठीक है। तो लिहाजा सोडियम इंटेक आपने कम करनी है। सही है। आपने दूध की इंटेक 1 से 2 ग्लास तक अलाउड है, इवन चीज और डेयरी प्रोडक्ट्स भी। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रफली टू द वेट इन केजीज। यानी अगर कोई पेशेंट जो है वो 70 किलो का है तो 70 ग्राम तक जो गोश्त है, इवन फिश या चिकन या मटन या बीफ, वो तकरीबन 70 to 80 ग्राम्स तक इन अ डे लिया जा सकता है। ओह, बड़े मजे का ये तो हिसाब किताब है। आप घर पे बैठ के हिसाब किताब कर सकते हैं। यानी अगर फर्ज करें, और ये मैं आपको व्यूअर्स को बता दूं कि व्यूअर्स आम तौर पे गलती खा जाते हैं कि जी ये तकरीबन 70 ग्राम समझे तकरीबन आधा पाव से
بھی کم बनता आधा पाव से भी कम है, बिकॉज एक पाव होता है 250 ग्राम, तो आधा पाव हो गया 125 ग्राम। तो आप समझिए तकरीबन तकरीबन जो चिकन का एक छोटा लेग पीस है ना, उसके अंदर जितना गोश्त होता है, चाहे वो मटन हो चाहे वो बीफ हो, इतना इन अ डे किडनी स्टोन पेशेंट को अलाउड है। यानी आपका जो भी वजन है, एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं, आपका जो भी वजन है किलोग्राम्स में, उसको उतना ही ग्राम्स में आपको प्रोटीन पर डे अलाउड पर डे। और सर इसमें पालक बिल्कुल डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा ये बात रेज की। पालक और टमाटर दे आर रिच इन ऑक्सीलेट्स और कैल्शियम और ऑक्सीलेट। आप देखिए ये क्रिस्टल्स जो हैं, हाउ दे फॉर्म। मैं ये शरबत पड़ा है सामने, इसके रेफरेंस से व्यूअर्स भी देख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर इसमें 4 चमचे चीनी डालेंगे और हल करेंगे तो हल हो जाएगा। 5वां चमचा डालेंगे तो इट सेटल्स डाउन। इट इज द सेम मैकेनिज्म इन किडनी स्टोन। जब भी सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट का देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस। तो जब भी ये कैल्शियम और ऑक्सीलेट्स दे आर इन बैलेंस विद द वाटर, दे आर सस्पेंडेड इन दैट फ्लूइड, दैट इज यूरिन। Whenever ये सोडियम, कैल्शियम एंड ऑक्सीलेट्स they exceed in amount as compared to water, they precipitate to form stones. यानी कि एक स्पेसिफिक मिकदार से ज्यादा नहीं हो सकता ये जो कैल्शियम का इंटेक आप बता रहे हैं, ऑक्सीलेट का जो इंटेक बता रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का। बड़ी ही साइंटिफिक तरीके से सर ने शरबत को जो है वो एक साइंस बना दिया है आपके लिए, लेकिन बहरहाल बताया है इन्होंने अपने साइंटिफिक तरीके से कि पालक और टमाटर का इंटेक लिमिटेड क्यों होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का। किडनीज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको बताएंगे, साथ साथ शेफ लमान होंगे, खाना पकाएंगे, क्या पकाएंगे आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जल्दी से वापस आ जाइए, स्टे ट्यून्ड। सर ये बताइए कि आपने एक स्टोन, अभी हम बात करने वाले थे, कोई हाथ में पहनने वाला स्टोन की हम बात नहीं कर रहे, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं। कोई सिट्रेट जैसा उसका नाम था सर, क्या है वो? क्या चीज? सिट्रेट के बारे में। हाँ, सिट्रेट के बारे में। सिट्रेट जो है वो एक प्लेयर है। उसके बाद मुझे एक शेर याद आया, उसके बाद हम आगे चलते हैं। व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा सा ज़ेब दास्तान के लिए बयान करूं। गुर्दे की जो पथरी है ये एक ऐसा मसला है, इट इज लाइक जो उसका पेन होता है, इट इज लाइक अ बुलेट इंजरी, इट इज लाइक अ डेंटल पेन, इट इज लाइक अ चाइल्ड बर्थ, इट इज अ वेरी सिवियर पेन। शदीद दर्द होता है जो पीछे से आगे की तरफ आता है। तो उस पे हमारे जो हैं ज़मीर जाफरी कहते हैं, गुर्दे में से पथरी क्यों कर निकली है, ये किसने मुझको पत्थर मारा अंदर से, शादी तो मजबूरन कर ही लेता है, रहता है हर मर्द कुंवारा अंदर से, रहता है हर मर्द कुंवारा अंदर से। वाह वाह। कैल्शियम ऑक्सीलेट, देखिए मर्दों की साइकी पे भी बात हो गई। सर आपने पथरी को शादी से रिलेट कर दिया। भाई अगर ऐसी बीमारी आपकी चलती रहे तो शायद आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे इलाज करवाने, लेकिन हमें खैर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास इलाज करवाने। जी सर। कैल्शियम ऑक्सीलेट एक सबसे कॉमनेस्ट मसला है और इसके लिए मैं आमना से पूछूंगा कि हमें ये बताएं कि क्या ऐसी डाइट है जो हम खाएं तो पथरी ना बने। आमना ऐसी कोई डाइट है? पालक सबसे पहले। सही है। नट सही है। ब्लैक टी। अच्छा आमना ये खाने या नहीं खाने? ये नहीं खाने। और कौन सी ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे ये ना बने? खाने कौन सी ज़्यादा? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, लेमन, और सारे जो माल्टा, मौसमी, कीवी वगैरह, ये सारे। अच्छा आमना एक बात बहुत जरूरी कि जब हम सिट्रस फ्रूट्स की बात करते हैं तो सिट्रस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ खट्टा खट्टा आ जाता है। तो अगर आप गूगल नहीं कर सकते, आपको नहीं पता, तो almost everything that is khatti is a citrus fruit, right? Not necessarily. Okay. Before I elaborate on that, टमाटर बिल्कुल बंद करते हैं। हाँ, टमाटर नहीं खा सकते। बिल्कुल पालक और टमाटर जैसे जो है ये बिल्कुल मैं आमना को सेकंड करूंगा। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई। जो सिट्रस है इट्स अ प्लेयर जो इन क्रिस्टल्स को मिलने से रोकता है, यानी ये स्टोन डिजीज का इनहिबिटर है, स्टोन को बनने से रोकता है। तो लिहाजा जितना ये सिट्रस आप बढ़ाएंगे उतने ही स्टोन का इंसिडेंस कम होगा। जबरदस्त। मैं आज अपने सूप के अंदर लेमन जूस का भी ऐड करने वाला हूँ, लेमन जस्ट भी ऐड करूंगा मैं।
नींबू के छिलके, लिहाजा ये स्टोन डिजीज के लिए बेहतरीन है। जी लमान, हमने अपने अंडे के अंदर हाफ शिमला मिर्च चॉप करके ऐड कर दी है। हमने इसके अंदर नमक जो ऐड करेंगे, नमक की क्वांटिटी एक चुटकी से भी कम होगी, ठीक है, खाली टेस्ट के लिए आपके सामने मैंने यूज किया है। लमान ऐड करते हैं यूजुअली उससे भी कम ऐड किए, कम के भी कम ऑब्वियसली। सर नमक को दिमाग में रखिएगा, अभी मैं जरा एक सवाल लेके आपके पास आती हूँ। ब्लैक पेपर हम यूज करेंगे एक चुटकी, दैट्स इट, और इसको हम करेंगे विस्क, ठीक है, और इसको हम करेंगे शैलो फ्राई ऑलिव ऑयल के अंदर। ऑलिव ऑयल, कितना ऑलिव ऑयल इस्तेमाल ऑलिव ऑयल हम यूज करेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून। देख के जरा, अच्छा अगर हम ऑलिव ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहें, नॉर्मल तेल का इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन बेहतर है कि आप ऑलिव ऑयल यूज करें। अच्छा आमना, अगर हम ऑलिव ऑयल ना अवेलेबल हो, नॉर्मल ऑयल का, नॉर्मल कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज करें, बट उसकी क्वांटिटी कम रखें। भर के तो आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी कैलोरीज है भाई, उसमें भी फैट है, कम ऑयल इस्तेमाल करना है। मीनवाइल हमारा जो है वो चिकन स्टॉक वो है बॉयल हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक चॉप हुई भी, और उसके बाद 3 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज, यानी कि बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे इसमें, फाइन चॉप हुई भी है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, ये भी फाइन चॉप हुआ है। इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, मैं चॉप करता हूँ उसको, ठीक है, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और इसको हम अदरक के साथ और चिकन स्टॉक के साथ पका रहे हैं। बड़ा ही मजे का फ्लेवरफुल सी एक चीज बनेगी। अच्छा हम जब तक इसके क्यूब्स थोड़े बड़े रखेंगे ताकि एक चम्मच के अंदर सब क्यूब्स आए नजर, अब पता चले ना कि भाई आप कोई चीज चबा रहे हैं, बिल्कुल जो है वो पीने लेकिन हम ये बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा जब तक आप ये कर रहे हैं, जरा हम आते हैं नमक की तरफ। सर नमक का इस्तेमाल क्या बिल्कुल नहीं करें, और किस कंडीशन में कम करना चाहिए नमक का इस्तेमाल? वो जो हांडी में पहले डल गया है वो तो ठीक है, सही है, मगर ऊपर से एक तो एडिड ना करें। अच्छा, मगर ये कि ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि नमक जो है नॉट ओनली वेट गेन में, बल्कि किडनी स्टोन्स में भी कम इस्तेमाल करना चाहिए, और किडनी फेलियर के जितने पेशेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन करता है, जिस्म के अंदर पानी को रोकता है, जमा करता है पानी को, सही, यानी आपको लगता है फूले फूले हैं, लेकिन वो बेसिकली पानी होता है, हेल्दी लग रहे होते हैं। हाइपरटेंशन में भी, किडनी फेलियर में भी, और किडनी स्टोन्स में भी नमक का इस्तेमाल व्यूअर्स कम रखें। बहुत जरूरी बात बताई कि जी नमक का इस्तेमाल ना सिर्फ आपको बहुत ज्यादा मोटा करेगा, बल्कि साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर आपको किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किडनी फेलियर की तरफ अगर आप जा रहे हैं या बचना चाहते हैं, नमक का इस्तेमाल कीजिए कम से कम। और किस किस चीज का इस्तेमाल करें, किस किस चीज का नहीं करें, बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जल्दी से वापस आ जाइए, स्टे ट्यून्ड। आप ये असेंबलिंग करें, थोड़ा सा हम आते हैं सर किडनी फेलियर की तरफ। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या रोका जा सकता है किडनी को फेलियर की तरफ जाने के लिए? जी बिल्कुल रोका जा सकता है। देखिए जो सबसे बड़े किलर्स या जो कल्प्रिट्स हैं, या जो बड़े पापी या मुजरिम हैं, 2 बीमारियां जो गुर्दे फेल करती हैं, वो शुगर और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। अगर आप इनसे बच सके तो समझे आपने एट लीस्ट यू कैन गारंटी टू सम एक्सटेंट कि आपको कोई गुर्दे का बड़ा मर्ज नहीं। यानी सर ये बहुत जरूरी बात इसलिए है क्योंकि जितनी भी खवातीन से आमना मैं मिलती हूँ ना, जिनको डायबिटीज होता है, पता है क्या कर रही होती हैं? वो लोगों से छुप के मीठा खा रही होती हैं। वो कहती है हमें तो कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, लेकिन आप उसी राह पे चल रहे हैं, और चलते चलते फिर आ जाएंगे इसी स्टेज पे फिर आप। और मैं जब पूछता हूँ कि तुम्हारा वजन ज्यादा है, वो कहती है नहीं, वो जो आखिरी बच्चा हुआ उसके बाद एकदम जिस्म सूज गया, उससे पहले तो मैं बहुत दुबली पतली थी। ठीक, तो बेसिकली अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर का जो आसान नुस्खा है वो आमना के पास है, ठीक है, दैट इज वेट कंट्रोल। यस, यानी कि अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली किडनी की बीमारी का भी वजन से ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक। सही, कि हर बीमारी का वजन से ताल्लुक है भाई, वजन को तो आपने बरकरार रखना ही रखना है। आमना आपका एक प्रोग्राम रहना है आपने, तो फिर आप वजन जो है ना अपना वजन बरकरार रखना पड़ेगा। आसान है वजन कम करना, हर किसी का वजन कम। अच्छा वो जो 9 दिन में आप कम कराती हैं वो कैसे कराती हैं? वो बड़ा जबरदस्त, मैंने अभी HTV और मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसका नाम है HTV का वेट लॉस प्रो। ये एक 9 दिनों का 9 डे डिटॉक्स प्रोग्राम है, जिसमें आप 6 से 12 पाउंड 9 दिन में गिरा सकते हैं फौरन। किसका? दूसरा का या अपना? नहीं अपना ऑब्वियसली। और ये पहले बहुत सक्सेसफुली 3 दफा प्रोग्राम चल चुका है, अब हमने बड़ी ऑन डिमांड इसको दोबारा शुरू किया है। 6 से 12 पाउंड, यानी कि 3 से 6 पाउंड, 3 से 6 केजी आप सिर्फ 9 दिन में गिराते हैं। ये एक पूरा प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है। फिर उसके बाद आपको मजीद 40 दिन का एक डाइट प्लान मिलता है, उससे मजीद और वजन गिरता है, तो आपके अप्रोक्सीमेटली 15 से
16 पाउंड जो है विद इन अ स्पैन ऑफ 40 डेज आप गिरा पाते हैं। तो ये आपको एक ऐसा ये उन लोगों के लिए जो अपना वजन बहुत अच्छे से गिराने की कोशिश कर रहे हैं और जिनसे गिर नहीं रहा, तो फिर ये प्रोग्राम आपके जिगर को यानी कि लिवर को डिटॉक्स कर देता है और उससे बॉडी के जब टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं तो वजन गिराना बहुत आसान है। और कैसे हासिल करेंगे? ये नंबर जो है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, 6,850 रुपए, 6,850 में आप ये पूरा प्लान हासिल कर सकते हैं, टोटल मिला के ऑलमोस्ट 40 दिन का। जी शेफ, आपने ये क्या किया ये जरा मुझे बताएंगे? या आप नहीं, वो तो बड़ा ही खूबसूरत एक्चुअली मुझे ना अपने प्लेट बनाना था क्रॉस, तो क्रॉस बनाता तो अगर ये सॉस नीचे होता तो हमारा सैंडविच खराब हो जाता, सॉगी हो जाता। तो ये रख के मैंने सैंडविच की जगह बनाई और बड़ा खूबसूरत। सर अगर ये किसी किडनी पेशेंट को दिया जाए, छोटा मोटा उसको कोई मसला हो, तो वो क्यों नहीं इस पे टूटेगा, है ना? बिल्कुल आइडिया, मजे का लग रहा है ठीक। अच्छा, जब तक लमान यहाँ पे आप इसको असेंबल कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ऐड किया है आपने? हमने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने इसके अंदर ट्रिपल लेयर बनाया हम लोगों ने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली लेयर हमने डबल रोटी की रखी, फिर हमने उसके ऊपर एक अंडा रखा, उसके नीचे हमने खीरा और सलाद पत्ता रखा। सही। हमने खीरा रखा इसलिए है क्योंकि अमूमन होता है कि सैंडविचेस आर ड्राई, खीरा वाटरी कंटेंट है तो आपको थोड़ा सा वेट सा फील होगा और आप बड़े आराम से खा लेंगे और जूसी लगेगा आपको। अच्छा सर, पानी से मुझे एक बड़े मजे की बात याद आई। दो खवातीन अगर बैठी हुई हैं, एक तो हमारे यहाँ नीम हकीम खतरा जान नाम के बड़े लोग होते हैं, तो होता क्या है, एक खातून अगर बता रही है कि जी मेरे मियाँ को या फिर उनके किसी जानने वालों को किडनी से रिलेटेड कोई मसला, अभी उन्होंने कोई मसला ही बोला होगा, दूसरी खातून बोलेंगी पानी बहुत पिए। अगर उनको किडनी फेलियर का मसला है तो क्या फिर भी पानी बहुत पिए? ये बड़ा पर्टिनेंट और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। हमारे पास ऐसे नीम हकीम बेतहाशा हैं। बिल्कुल। उसके बारे में मेरे जो उस्ताद हैं ज़ियाउल हक कासमी, वो कहते हैं कलम ऐसे ही दो चार लगा लेता हूँ जेबों में, मेरे अहबाब में इससे मेरी तौकीर बढ़ती है, कभी लिखने लिखाने की तो नौबत ही नहीं आती, मैं नाड़ा डाल लेता हूँ जरूरत जब भी पड़ती है, मैं नाड़ा डाल लेता हूँ। भाई हमारे भी लोग यही कर रहे होते हैं। तो ऐसे नीम हकीमों से होशियार रहे हैं। देखिए, पानी जो है वो हर मसले का हल नहीं है। अच्छा। इवन स्टोन डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी, जो जिन गुर्दे की पथरी का मर्ज है, उनके लिए भी सिर्फ पानी पीना मसले का हल नहीं है। इसके अलावा जैसे अभी आमना ने बताया, लेमन और सिट्रस जूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ग़िज़ा पे एक फोकस होना चाहिए। पूरा ग़िज़ा का एक डाइट प्लान जैसे आमना दे रही है। ठीक है। जहाँ तक सवाल है किडनी फेलियर का, ये एक ऐसा मसला है जो एक संजीदा मसला है। ठीक है। इन मरीजों को आमतौर पे हम वाटर रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुर्दे का नाम सुनते ही आप पानी की तरफ ना दौड़ें। ठीक है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन यानी पानी कम दे रहे होते हैं, क्योंकि वो गुर्दों की जो छन्नी है वो इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है कि वो वाटर को प्रॉपरली जिस्म से बाहर अखराज नहीं कर रही। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि क्यों, लेकिन कितना पानी पीना चाहिए उन पेशेंट्स को जिनके गुर्दे फेल हो रहे होते हैं, हो चुके होते हैं? आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शेफ लमान की डिशेस भी यहाँ पे आ जाएंगी, तो जल्दी से वापस आ जाइए। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग। हेल्दी कुकिंग में हेल्दी कुकिंग तो हमारी बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन साथ साथ हेल्दी बातें हमारी जो हम हमेशा आपको बता रहे होते हैं, किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, चाहे वो स्टोन्स हो, यूटीआई हो, या साथ साथ किडनी फेलियर हो, क्या करना चाहिए आपको, हम आपको बता रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ जो है वो डॉक्टर इम्तियाज अली मौजूद है, यूरोलॉजिस्ट आमना है हमारी, और शेफ लमान है जो कि अपनी डिशेस को रेडी कर चुके हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। लमान, ये क्या जबरदस्त नहीं ना? अच्छा, लवली। अब हमारे यहाँ ये होता है सर कि बेसिकली हमारी ये जो डिश आती है, आप लोग को भी बता दें अगर आपने हमें अभी देखना स्टार्ट किया है, जो भी हम बनाते हैं हमारी हेल्दी कुकिंग में, उसको हम 1 से लेके 10 तक हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से, और आप हमारे साथ हैं तो आपसे हम रेट करवाएंगे सेहत के हिसाब से, किडनी के हिसाब से स्पेसिफिकली। लेकिन सर उससे पहले मैं चाहूंगी कि वो सवाल का जवाब आप दे दीजिए जो कि ब्रेक से पहले हमने पूछा था कि किडनी फेलियर में पानी क्यों कम पीना चाहिए, ये तो आपने बता दिया, कितना कम पीना चाहिए ये प्लीज बता दीजिए। किडनी फेलियर के वो मरीज जिनको पेशाब कम आ रहा है, उनके लिए हम कहते हैं कि वो वाटर, अपना जो पानी है उसको रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है। मगर वो फेलियर के मरीज जिनको यूरिन नॉर्मली आ रहा है, उनको हम पानी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। अच्छा, तो जिनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनको कितना बोलते हैं? उनको हम कहते हैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास इन अ डे, दैट इज द टोटल। तो और उनको नेचुरली प्यास लगती है। अच्छा। और प्यास लगती है, और बहुत दफा प्यास लगती है, और शदीद प्यास लगती है, तो हम कहते हैं जी कप रख लें, उसमें मेजर करें
اور گھونٹ گھونٹ پئیں، یا ہم کہتے ہیں کہ آئس کی کیوبز لے کر ان کو سک کریں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو مینج کرنا پڑتا ہے، ورنہ ان مریضوں کو جو دوسری چیز ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے، اگر یہ زیادہ پانی پیئیں گے وہ پانی کیا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. وہ پانی نکلے گا تو نہیں، صحیح ہے، کیونکہ چھنیاں ڈیمیج ہیں. صحیح ہے. وہ پانی پھر جسم میں بلٹ اپ ہوگا، پاؤں سوج جائیں گے، جسم سوج جائے گا، جسم میں پانی بھرنا شروع ہو جائے گا، سانس چڑھ جائے گی. صحیح ہے. اور ڈائلسس کرانا پڑے گا. جو ڈائلسس پرسوں کرانا تھا وہ آج کرانا پڑے گا. اتنا زیادہ نقصان دہ، اسی لیے آپ کو اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی بہت سیریسلی لینا چاہیے. جب بتائیے آپ کو سک کر سکتے ہیں، کم بھی ہوگا اور بہت زیادہ پانی بھی آپ کی باڈی میں پھر نہیں جائے گا. اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس ہماری ڈشز ہیں. پہلے ہم آمنا سے ذرا اسٹارٹ کرتے ہیں. آمنا، اگر ہم اس سوپ سے اسٹارٹ کریں، کلیئر سوپ ہے، سبزیاں ہیں، نو کارن فلاور ایڈڈ، 1 سے لے کے 10 تک کیا پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویٹ لاس پوائنٹ آف اور کڈنی کے پوائنٹ آف ویو اور کڈنی کے بہت پانی ہے جناب. بالکل ایبسلیوٹلی صحیح. سر اب ہم ذرا آتے ہیں، آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو سینڈوچ بنایا ہے ہم نے حسین و جمیل قسم کا، اس کو آپ کیا مارکس دینا چاہیں گے 1 سے لے کے 10 تک؟ کڈنی 9.5 تک تو ضرور دے دوں. 0.5 کیوں کاٹے ہیں؟ شاید یہ اب بہت اچھا سوال انہوں نے ریز کیا ہے. دیکھیے، اگر اسٹون کا پیشنٹ ہے، یعنی پتھری کا مریض ہے، تو اس کے لیے تو ٹماٹر ایک کلپریٹ ہے. اگر جو 95% پاپولیشن ہے اس کے لیے ٹماٹر سے بہتر کوئی سبزی نہیں ہے. لہٰذا آپ ٹماٹر کو اتنا کلپریٹ یا اتنا کوئی خلنائک نہ سمجھیں. اس کے اندر بھی بڑے فضائل موجود ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ویورز کو یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. ہم یہ غلط میسج بالکل نہیں دیں گے کہ ٹماٹر جو ہے وہ انہیلدی ہے یا وہ بہت خراب چیز ہے. لیکن صرف اس بیماری سے ریلیٹڈ صرف کڈنی اسٹون، اونلی کڈنی اسٹون، اینڈ کڈنی اسٹون اونلی 4 to 5% آف پاپولیشن. واٹ اباؤٹ ریسٹ آف 95%؟ بالکل بالکل. جو باقی 95% ہیں ان کے لیے جو ٹماٹر ہیں، دے آر اینٹی آکسیڈنٹس، دے آر رچ ان ادر تھنگس جو کہ اینٹی کینسر ہیں اور امیون بوسٹنگ ہیں. تو لہذا اینٹی کینسر، امیون بوسٹنگ، اینٹی آکسیڈنٹس، ٹماٹر از اے ویری رچ فوڈ جو کہ سب لوگ لے سکتے ہیں. زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امتیاز. اتنی ساری انفارمیشن اتنے چھوٹے سے شو میں ہم سے شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے ہمارے شو پہ، بہت بہت شکریہ. آمنا آپ کا ویلکم، مائی پلیجر. سب کچھ بتا دیا آپ نے، یہ کھائیں یہ نہ کھائیں، تو اب آپ کو سب کچھ پتا چل چکا ہوگا کہ کڈنی کی کوئی بھی بیماری ہو کھانا کیا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ شیف لمان آپ کا، اتنی مزیدار، اتنا خوبصورت سینڈوچ ریڈی کرنے کا اور اتنے مزے کا جو ہے وہ سوپ تیار کرنے کا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کے شو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. بہت کچھ اگر اور بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہیلدی کوکنگ کا پیج ہے ہمارا، فیس بک پہ پیج ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں اور کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ملیں گے آپ سے نئے شو میں بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اس ٹی وی کو گاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.